Good morning everyone. How are you all doing? Hope everyone are fine. Today we are going to continue with the previous topic, that is breach of contract and remedies available in respect of breach of contract. In the previous lecture we have gone with types of breach. Under that we have covered actual breach and anticipated breach. Actual breach is where the party fails to perform the promise on the due date, then it is called as an actual breach. Anticipatory breach is before the due date. If one of the party refuses to perform the promise, then it is called as an anticipatory breach. Under that we have seen that what are the remedies available with the aggrieved party. First was the rescission of the contract, that is, he is entitled to cancel the contract. The aggrieved party can cancel the contract, and we have seen that he will not file a suit against the other party, or he may file a suit against the other party. He has both the option, that simply to cancel the contract and not to carry on any other work or any other, not to file any suit against the defaulting parties. And ये भी अपन ने देखा है कि objective of filing a suit is specifically to recover the damages or a compensation from the other party. तो पिछले क्लास में we were referring to types of damages. उसमें we have covered with a general ordinary damages, and second one is a special damages that we will once revise. Ordinary damages is simple damages. अगर कोई particular party अपना promise पूरा नहीं करता है, तो I told you that कि aggrieved party can recover the damages that may be equal to a difference between the market price and the contract price. Or special damages is under special circumstances. और special circumstances क्या रहेंगे कि अगर कोई particular party को कोई चीज चाहिए और वो पर्टिकुलर गुड्स वो आगे किसी और को सप्लाई करने वाला है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के लिए चाहिए, और उसने अगर अदर पार्टी को ये प्री इन्फॉर्म किया है कि ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है और आपको ये निभाना है, आपको फुलफिल करना है, और अगर आप नहीं करते हो तो देन आई एम गोइंग टू इनकर द लॉस एंड दैट लॉस इज गोइंग टू बी रिकवर्ड फ्रॉम यू. So these are the special circumstances. However, special damages cannot be recovered as a matter of right. It can be recovered only if the party has made a pre-information to the other party, and only in that circumstances you can recover that special damages. General rule is that defaulting party will not be liable for a remote loss. जैसे मैंने आपको एक ट्रेन का एग्जांपल दिया था, उसमें ट्रेन लेट हो गया और वो पर्टिकुलर पार्टी का aggrieved party has lost that contract worth ₹2 crore and you want to claim that loss from the railways. So I told you that defaulting party will not be liable for remote loss, लेकिन कुछ circumstances में they may be liable only when a party makes a pre-information to the other party and he can claim that damages as a special damages. So previous lecture में we have covered with an ordinary damages and the special damages. Today we are going to continue with that particular topic, and today we are going to study about exemplary and vindictive damages. Exemplary and vindictive damage are punitive in nature, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक चीज बोलता है कि फिजिकल पनिशमेंट आप किसी को नहीं दोगे as far as इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज कंसर्न, बट स्टिल हियर इट इज कॉल्ड एज अ punitive. तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पिन्यूटिव का मीनिंग ये है कि फिजिकल हार्म नहीं बल्कि फाइनेंशियल हार्म डिफॉल्टिंग पार्टी को देंगे, और वो किस तरीके से देंगे विल रिफर अंडर दिस व्हाट दे हैव कवर्ड. एग्जेम्पलरी एंड विंडिक्टिव डैमेजेस, these are such damages which are awarded with a view to punishing the guilty party for the breach and not by way of compensation for the loss suffered by the aggrieved party. As such, in this case there is no financial loss to the aggrieved party, and only with this objective, as there is no financial loss to the aggrieved party, but still the party has suffered something,
what he has suffered is not a financial loss, but he has suffered a loss of reputation. जैसे मैंने आपको कल बताया कि विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस दो सर्कमस्टेंसेस में अवॉर्ड किए जाएंगे. फर्स्ट इज रिफ्यूजल फॉर मैरिज एंड सेकेंड वन इज रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय द बैंकर्स. So in these two cases, if you see that there is no such financial loss, but there is a loss of reputation. So that's the reason why it has been said that these are such damages which are awarded with a view to punishing the guilty party for the breach and not by way of compensation for the loss suffered by the aggrieved party. Loss suffered by the aggrieved party. As observed earlier, the cardinal principle of law of damages for the breach of contract is to compensate the injured party for the loss suffered and not to punish the guilty party. Hence, obviously, exemplary damages have no place in the law of contract and are not recoverable for the breach of contract. However, there are two exceptions to this rule. As the name implies, punitive in nature. They are called as a punitive damages. Punitive का मीनिंग है पनिशमेंट डैमेजेस. तो एग्जेम्पलरी एंड विंडिक्टिव आर punitive इन नेचर. लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा गया है कि एज सच कोई आप फिजिकल पनिशमेंट किसी को नहीं दोगे एज फार एज इंडियन लॉ इज कंसर्न और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न. लेकिन फिर भी ये पर्टिकुलर डैमेजेस इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है. यहां पे भी ये पर्टिकुलर डैमेजेस को इंक्लूड करने का ये ऑब्जेक्टिव है कि इट सेज दैट के पनिशमेंट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर सिकामत गिल्टी पार्टी को आपको देना है कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने ऐसा किया है, तो आपको उसको एक शिक्षा देनी है ताकि वो आगे चल के ऐसा ना करे. तो इसीलिए ये पर्टिकुलर डैमेजेस यहां इंक्लूड किए गए. Further, we'll see to it. These are, however, two exceptions to this. There are, however, two exceptions to this rule. First is breach of contract to marry. Now, what it says, breach of contract to marry, यानी अगर A ने B को promise किया है कि he is going to marry B, and after that A refuses to marry B. तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज दैट कि देयर इज अ लॉस ऑफ रेपुटेशन ऑन द पार्ट ऑफ बी. तो यहां पे ए ने एज सच बी का फाइनेंशियल लॉस नहीं किया है, लेकिन ए ने बी का रेपुटेशन का लॉस किया है. इसीलिए बी इज एंटाइटल्ड टू पनिश ए. बट हाउ बी इज गोइंग टू पनिश ए इज नॉट फिजिकली बट फाइनेंशियली. व्हाट इट सेज, in this case, the amount of damages will depend upon the extent of injury to the party feelings. There is no financial loss, but there is an emotional loss. There is a loss of feelings. In the sense, feelings are hurt. कि एक ने अगर दूसरे के साथ शादी का वादा किया है और बाद में वो उस शादी के वादे को नहीं निभाता है, तो जस्ट इमेजिन how the feelings are hurt. So, as such, if you see this, Indian Contract Act, it has been said that it is a mercantile law. So, it will all talk about a contract, it will all talk about a business. But still, law has taken a special care about all this. Where the feelings are hurt on account of refusal to marry after promising or wrongful dishonor of check, it has been said that कि वहां पे एक पर्टिकुलर पार्टी के रेपुटेशन को या फीलिंग को हर्ट हुआ है. तो नाउ हाउ यू आर गोइंग टू वैल्यू दिस हर्टिंग्स ऑफ फीलिंग. तो इफ अ पर्सन फाइल अ केस अगेंस्ट द अदर पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ दिस थिंग, तो कोर्ट विल एनालाइज के रेपुटेशन का लॉस कितना हुआ है, and accordingly court will give a judgment for the recovery of damages from the other party. So what it has been said, breach of contract to marry, एक ने दूसरे से शादी का वादा किया है, शादी के वादे को नहीं निभाया है,
सामने वाले के फीलिंग्स को हर्ट हुआ है, वो अगर केस फाइल करता है तो देन कोर्ट विल अवॉर्ड अ कॉम्पेंसेशन एंड दैट कॉम्पेंसेशन विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द रेपुटेशन हैज बीन, कितना रेपुटेशन का लॉस हुआ है एंड उस हिसाब से उसको अवार्ड मिलेगा। सेकेंड केस जहां पे विंडिक्टिव एंड एग्जेम्पलरी डैमेजेस विल बी अवॉर्डेड इज dishonor of check by a banker when there is a sufficient fund to the credit of the customer. It means that कि just example, just imagine कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर मेरा एक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, जिसमें 10 लाख रुपीज डिपॉजिट है एंड आई हैव गिवन वन ऑफ द चेक टू जवर सर वैल्यू ऑफ रुपीज 2 लाख। नाउ द थिंग इज, मेरे खाते में 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का चेक मैंने जवर सर को दिया, जवर सर ने वो चेक डिपॉजिट किया मेरे अकाउंट के अंदर, लेकिन बैंक वाले से यहाँ पे गलती हो गई, उसने वो चेक को रॉन्गफुली डिसऑनर कर दिया, ये बोल के देयर इज एन इनसफिशिएंट फंड इवन दो देयर इज अ सफिशिएंट फंड इन माय अकाउंट। 10 लाख होने के बावजूद भी बैंक वाले ने वो चेक डिसऑनर कर दिया। नाउ जस्ट इमेजिन, जैसे फर्स्ट केस था रॉन्ग रिफ्यूजल टू मैरी, उसी तरीके से यहाँ पे कि खाते में पैसे होने के बावजूद भी बैंक वाले ने मेरा चेक बाउंस कर दिया। तो हाउ जवर सर मैं थिंक अबाउट मी, क्या बोलेंगे? नॉर्मल क्या बोलेंगे? अगर आपका चेक किसी का, आपको चेक किसी का मिला, आपने चेक डिपॉजिट किया और वो चेक बाउंस हो जाता है, तो सबसे पहले फीलिंग आपका क्या आता है कि सामने वाले पार्टी का क्रेडिबिलिटी नहीं है। दैट मीन्स उसके इतनी औकात नहीं है कि वो पैसा दे, चेक दिया, चेक देने की औकात नहीं है, चेक दिया और चेक बाउंस हो गया। तो अब यहां मेरी औकात पे बात आ गई। जवर सर ने चेक डिपॉजिट किया, जवर सर का चेक बाउंस हो गया, सर ने मेरे बारे में सोचा कि मुर्तजा का इतना औकात नहीं है कि वो 2 लाख का चेक दे सके, चेक बाउंस हो गया। तो हियर माय फीलिंग्स आर हर्ट, माय रेपुटेशन हैज बीन लॉस्ट। तो दैट्स द रीजन I am going to file a case against the bankers कि मेरे खाते में पैसा होने के बावजूद भी आपने मेरा चेक बाउंस क्यों किया? Why you said there may be other reason like सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है, तो ये बात नहीं चल रही है। यहाँ पे क्या बात चल रही है कि अगर वो सिग्नेचर मैच नहीं हुई तो वो इस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं आएगा। यहाँ पे बात चल रही है कि खाते में सफिशिएंट अमाउंट है और फिर भी बैंकर ने चेक बाउंस कर दिया, तो उस केस में आई एम एंटाइटल्ड टू रिकवर द डैमेजेस फ्रॉम द बैंकर्स। तो दिस इज हाउ इन दीज टू केसेस विंडिक्टिव एंड एग्जेम्पलरी डैमेजेस विल बी अवॉर्डेड। शादी का वादा करके रिफ्यूजल किया है, केस फाइल होगा और कोर्ट डिसाइड करेगा कितना रेपुटेशन का लॉस हुआ है, कितनी फीलिंग्स हर्ट हुए। इट विल डिपेंड ऑन द जज, ही इज गोइंग टू डिसाइड द केस एंड गोइंग टू अवॉर्ड टू द पर्सन कि आपको इतना अवार्ड दिया जाता है। सेकेंड, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक में जस्ट इमेजिन कि मैंने 2 लाख रुपए का चेक सर को दिया, चेक बाउंस हो गया, चेक सर मेरे बारे में सोचेंगे कि 2 लाख देने की औकात नहीं है। जस्ट इमेजिन कि अगर मैंने सर को 2 लाख की जगह 200 रुपीज का चेक दिया है और जवर सर ने वो 200 रुपीज का चेक डिपॉजिट किया और 200 रुपीज का चेक हो गया बाउंस। अब जस्ट इमेजिन करो, अब आपके ध्यान में भी आ रहा होगा कि 200 रुपए का चेक बाउंस हो गया, तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे? सबसे पहले तो बहुत गालियां देंगे कि औकात नहीं, 200 रुपए की औकात नहीं है, 200 रुपए का चेक दे रहा और बाउंस हो गया। 2 लाख रुपए का बाउंस हुआ, ठीक है, ओके फाइन, चलता है, ऐसे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती है। लेकिन अगर 200 रुपए का चेक बाउंस हो गया, तो जस्ट इमेजिन व्हाट यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर गाय हु हैज गिवन यू अ चेक एंड द चेक ऑफ 200 रुपीज हैज बीन बाउंस्ड। तो हियर इट हैज बीन सेड दैट कि जितना चेक का अमाउंट कम है उतना ही आपको डैमेजेस ज्यादा मिलेंगे, और जितना चेक का अमाउंट ज्यादा रहेगा उतना ही डैमेजेस का वैल्यू विल बी लेसर, क्योंकि जितना चेक का अमाउंट कम है उतना रेपुटेशन का लॉस ज्यादा है, और जितना चेक का अमाउंट ज्यादा है उतना ही रेपुटेशन का लॉस कम है, क्योंकि बड़े चेक्स बाउंस होते रहते हैं। जवर सर को अगर 2 लाख का चेक दिया और बाउंस हुआ तो सर सोचेंगे ओके फाइन, 2 लाख रुपए उस डेट पे होंगे नहीं सर के अकाउंट में, इसलिए बाउंस हो गया, तो रेपुटेशन का लॉस ज्यादा नहीं है। लेकिन यहां पे क्या बोला गया है
कि अगर बैंक रॉन्गफुली चेक डिसऑनर करता है तो एग्रीव पार्टी के पास ये राइट है कि वो बैंकर के अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकता है, एंड दोज डैमेजेस आर कॉल्ड एज अ विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेज. In the case of wrongful dishonor of check, the damages would depend upon the loss of credit and reputation suffered by the customer. The damages could be very heavy if loss had been suffered by a businessman when compared to a non-business customer. Similarly, where the value of check is small, the damages could be very heavy in comparison to a situation where the value of check is heavy. This is in the theory that dishonor of small value of check would cause more damages to the honor of the customer. अगर small amount का check, penny check has been bound, in that circumstances there is a higher loss of reputation. इसीलिए बोला गया है कि अगर चेक का वैल्यू कम है और बाउंस होता है, इवन आपके अकाउंट में पैसा है फिर भी बाउंस हो गया, तो फिर डैमेजेस आप ज्यादा क्लेम कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा. नेक्स्ट इज नॉमिनल डैमेजेस. नॉमिनल डैमेजेस में बोला गया है कि एज सच एग्रीव पार्टी का फाइनेंशियल लॉस कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ओनली विद एन ऑब्जेक्टिव कि मैं सामने वाले को ये प्रूफ करवाना चाहता हूं कि आपने गलती की है, इसीलिए मैं कोर्ट में जा रहा हूं और कोर्ट में ये मैं दर्ज करवाना चाहता हूं, मैं कोर्ट के अंदर ये नोटिस करवाना चाहता हूं कि सामने वाले ने ये रॉन्ग डूइंग किया है, ये गलती की है, तो उसी वजह से मैं कोर्ट में जा रहा हूं. एज सच मेरा फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू सप्लाई यू 200 टीवी सेट्स वर्थ रुपीज 1 लाख, और 1 लाख रुपीज के मैं आपको टीवी सेट सप्लाई करूंगा, और उस दिन डेट में जो दिन वादा किया है उस दिन आके मैं आपको बोल देता हूं कि आई विल नॉट बी एबल टू सप्लाई यू द टीवी सेट्स, जो मैंने प्रॉमिस किया लेकिन मैं नहीं निभा पाऊंगा, आप मार्केट से परचेस कर लो, मार्केट में भी उसकी वैल्यू आज 1 लाख रुपए ही है और आपका ऐसा कुछ फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा है. तो इस केस में आप मेरे से लेते थे तो भी मैं 1 लाख रुपीज में दे रहा हूं, आप मार्केट से ले रहे हो तो भी 1 लाख रुपीज में आपको मार्केट से मिल रहा है, तो एज सच फाइनेंशियल लॉस आपका नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप ये प्रूव करना चाहते हो कि मैंने गलती की है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो. तो कोर्ट इस सर्कमस्टेंसेस में नॉमिनल डैमेजेस देगा और आपका एज सच फाइनेंशियली पैसा वसूल करने का, डैमेजेस वसूल करने का ये ऑब्जेक्टिव भी नहीं है. आप कोर्ट में इसीलिए जा रहे हो क्योंकि आपको कोर्ट में ये नोटिस करवाना है कि मैंने गलती की है, तो इस सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट नॉमिनल डैमेजेस अवार्ड करेगा. द वैल्यू ऑफ दैट डैमेजेस में बी 1 रुपी और 10 पैसा दैट हैज बीन गिवन. नॉमिनल डैमेजेस आर दोज व्हिच आर अवॉर्डेड ओनली फॉर द नेम सेक. These are neither awarded by way of compensation to the aggrieved party nor by way of punishment to the guilty party. These are awarded to establish, that means दर्ज करवाना है, नोटिस करवाना है कोर्ट के अंदर कि इसने गलती की है. These are awarded to establish the right of decree for the breach of contract. Right to decree. Right to decree का meaning है if I have made a mistake and you want to prove in the court of law that I have made a mistake, so you will obtain a judgment from the judge, and that judgment is called as a decree or the order of the court. Decree for the breach of contract, or it can also be called as an order from the court. Decree for the breach of contract when the injured party has not actually suffered any real damages and consist of very small of money, say a rupee or 2. It will be a very small damages. As such उसका वैल्यू कुछ नहीं रहेगा. सिर्फ ऑब्जेक्टिव इंजर्ड पार्टी या एग्रीव पार्टी का ये है कि वो कोर्ट में वहां पे एक नोट करवा देना चाहता है कि मिस्टर मुर्तजा या वॉट एवर गिल्टी पार्टी या फिर डिफॉल्टिंग पार्टी ने ये गलत किया है, उसने प्रॉमिस किया और उसका प्रॉमिस उसने नहीं निभाया. For example, where in a contract of sale of goods, if the contract price and the market price is almost same at the date of breach of contract, then the aggrieved party is entitled only to the nominal damages. Next is damages for deterioration caused by delay. Deterioration caused by delay. Deterioration का meaning है कि decrease in a value or loss of something on account of delay, यानी देरी करने के वजह से ये नुकसान हुआ है.
This kind of a damages will generally be recovered from a carrier or a transporter, where he is supposed to bring the goods but there is a delay in the journey, और उस वजह से मुझे गुड्स टाइम पे नहीं मिले, और गुड्स टाइम पे नहीं मिले तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट आई मे लूज द अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर सेल एंड देयर इज द लॉस ऑफ प्रॉफिट, और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी के डिले होने की वजह से क्वालिटी हैज बीन डिक्लाइन। जैसे कि अगर पेरिशेबल गुड्स है और अगर आपने वो मुंबई से जलगांव मंगाया है तो इट शुड कम विद इन अ नाइट। अगर 3-4 दिन बाद वो पेरिशेबल, जैसे कि अगर मैं पनीर की बात करता हूं तो अगर 4-5 दिन हो गए और उसके बाद वो पनीर जलगांव आता है तो इट विल बी ऑफ नो यूज। तो इट कवर्स बोथ द केसेस, वन इज द गुड्स हैज बीन डैमेज और यू कैन से दैट कि देयर इज अ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिले हुआ उसकी वजह से या तो गुड्स डैमेज हो गए, या फिर अगर वो नॉन पेरिशेबल गुड्स है, क्वालिटी वाइज डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं लेकिन डिले होने की वजह से आई लॉस द अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर सेल और देयर इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो इन दिस बोथ केसेस आई कैन रिकवर द डैमेजेस फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर। तो व्हाट इट सेज, compensation can be recovered even without notice for damages or deterioration caused to goods on account of delay by carrier amounting to breach of contract. Here the word deterioration means not only physical damage but also a loss of opportunity. So it covers both decrease in the quality, that is the physical damage, or loss of opportunity. In Wilson versus Lancashire and Yorkshire Railway Company, the plaintiff bought velvet with a view to making it into caps for sale during spring. But due to delay in transit, he was unable to use the velvet for making caps for sale during the season. It was held that the fall in the value of sale of cloth in consequences of the same having arrived after the season amounted to deterioration. It was here held that the plaintiff is entitled for compensation without notice. It is a simple case कि एक पर्टिकुलर चीज एक सीजन में चाहिए थी, सीजन में वो चीज नहीं आई, आफ्टर सीजन आई तो ऑब्वियसली द वैल्यू हैज बीन डिक्लाइन। यहाँ पे प्लेंटिफ का मीनिंग है जिसने केस दायर किया है कोर्ट के अंदर, उसने ये रिक्वेस्ट लगाई है, ये दुआर लगाई है कोर्ट से कि मैंने वेलवेट एक कपड़ा मंगाया था, किस वजह, कौन से पर्पस के लिए मंगाया था कि मुझे कैप्स बनाना था और वो पर्टिकुलर सीजन से कैप्स को सेल करने का था, लेकिन टाइम पे वो पर्टिकुलर क्लॉथ नहीं आया, इस टाइम पे नहीं आया, डिले हो गया इन जर्नी और वो लेट आया, तो वो कपड़े का वैल्यू हैज बीन सीरियसली डिक्लाइन एंड सो अभी वो पर्टिकुलर कैप्स जो है वो मार्केट में नहीं बिकेंगे। अगर मैं इवन बनाता हूं और बनाता भी हूं तो वो रेट पे नहीं बिकेंगे जिस रेट पे मैं बेचना चाहता था। तो यहाँ पे डिक्लाइन इन द वैल्यू जितना हुआ है उतना उसने क्लेम डाला वो पर्टिकुलर रेलवे कंपनी के ऊपर और उसको कोर्ट ने उसके फेवर में वो जजमेंट दिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रांसपोर्टर कैन बी अ ट्रक वाला, कैन बी एनीवन, रेलवे वाला, और उनके वजह से अगर डिले होता है और उस डिले के वजह से वो प्रोडक्ट या तो खराब हो जाता है या तो फिर आप देयर इज अ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो उस दोनों केसेस में आप डैमेजेस रेलवे कंपनी या ट्रांसपोर्टर या हूसोएवर इज कैरिंग योर गुड्स आप उनसे वो वसूल कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रीफिक्स डैमेजेस। प्रीफिक्स एज द नेम इंप्लाइज, प्री यानी पहले से ही फिक्स किया हुआ डैमेजेस, यानी जब आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो at that juncture itself you are going to fix the damages कि इतना damages रहेंगे, तो they are called as a prefix damages. Sometimes parties to a contract stipulates at the time of its formation that on the breach of contract any of them a certain amount will be payable as damages. It may amount to either liquidated damages, that is a reasonable estimate of the likely loss in the case of breach, or a penalty, that is an amount arbitrarily fixed as a damages payable. Earlier we have referred to the special damages, that is something different. उसमें क्या बोला गया है कि आपसे मैं ये चीज इस पर्पस के लिए ले रहा हूं कि मुझे आगे ये काम करना है, आपसे मैं मशीन के पार्ट्स इसीलिए ले रहा हूं कि मेरा मशीन खराब है और मुझे मशीन विद इन अ डे स्टार्ट करना है, तो आपका पार्ट्स एक दिन में लाना, आप मुझे पार्ट्स एक दिन में सप्लाई करोगे, तो यहाँ एक स्पेसिफिक पर्पस है।
वो पर्पस के बारे में वो सामने वाले को बता रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा इतना नुकसान हो जाएगा और वो नुकसान मैं आपसे लूंगा। दिस इज कॉल्ड एज अ स्पेशल डैमेज। प्रीफिक्स डैमेज में बोला गया है कि डैमेजेस या तो एक रीजनेबल अमाउंट रहेगा या अनरीजनेबल। अनरीजनेबल इन द सेंस आर्बिट्रेरी, एडॉक फिक्स कर दिया गया है कि इतना अमाउंट देंगे। ये जनरली गवर्नमेंट के साथ अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, गवर्नमेंट का अगर आप कोई ऑर्डर लेते हो, काम करते हो, तो इट इज जनरली फिक्स अंडर द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कि अगर आपने ये काम इतने टाइम पीरियड में नहीं किया तो आपके ऊपर इतना जुर्माना होगा। तो दैट जुर्माना इज कॉल्ड एज अ प्रीफिक्स डैमेजेस। अब वो प्रीफिक्स डैमेजेस या तो रीजनेबल रहेंगे या अनरीजनेबल रहेंगे। इफ इट इज रीजनेबल इट विल बी कॉल्ड एज अ लिक्विडेटेड डैमेजेस, and if it is exorbitant, unreasonable, it is called as a penalty. So what has been given? Section 74 provides that if a sum is named in a contract as the amount to be paid, in the case of breach, the aggrieved party is entitled to receive from the party at fault a reasonable compensation not exceeding the amount so named, that is section 74. If the sum is named in a contract, that means a specific amount will be fixed in a contract कि guilty party इतना compensation देंगी अगर उन्होंने अपना promise पूरा नहीं किया तो। Example, if a penalty provided by the contract is 1 lakh and the actual loss is actual loss because of breach is 70,000, only 70,000 shall be payable available as damages, that is the amount of actual loss and not the amount stipulated. But if the loss is say 1,50,000, then amount 1 lakh shall be recoverable. But one thing is there in the case of a prefix damages is that whichever is lower amount will be awarded to you. अगर अमाउंट ऑफ डैमेजेस फिक्स इन द कॉन्ट्रैक्ट इज 1 लाख, आपका नुकसान 70,000 रुपए का हुआ है तो विच एवर इज लोअर अमाउंट फिक्स 1 लाख, लॉस 70,000, लोअर अमाउंट इज 70,000, तो यू विल बी एबल टू रिकवर 70,000. However, amount fixed is 1 lakh, but the loss is 1,50,000. Whichever is lower, again 1 lakh is lower, so you will recover 1 lakh as a damages, and that damages will be called as a prefix damages. What it further says, liquidated damages and penalty. Liquidated damages means a sum fixed up in advance which is fair and genuine pre-estimate of the probable loss that is likely to result from the breach. Liquidated damages will be generally, it will be a pre-estimation. Pre-estimation in the sense कि पहले से ही आप estimate कर लोगे कि अगर ये काम नहीं होता है तो एग्रीव पार्टी का इतना नुकसान होगा, और वो नुकसान आप आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्री एस्टिमेट करके डाल देते हो. तो सच लॉस विच इज प्री एस्टिमेटेड इज कॉल्ड एज अ लिक्विडेटेड डैमेजेस. तो इट हैज सम कैलकुलेशन. लिक्विडेटेड डैमेज के बेस पे देयर इज सर्टेन कैलकुलेशन कि ये कैलकुलेशन के हिसाब से ये लॉस कैलकुलेट किया है और वो लॉस को आपने आपके कॉन्ट्रैक्ट में इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडेटेड डैमेज डाला है. लेकिन इसके ऑपोजिट देयर इज अ पेनल्टी. पेनल्टी का एज सच देयर इज नो बैकअप कैलकुलेशन. इट इज लाइक एन एडॉक कैलकुलेशन कि इतना लॉस आपको देना पड़ेगा. पेनल्टी मीन्स अ सम फिक्स अप इन एडवांस विच इज एक्स्ट्रावेगेंट and unconsignable in comparison with the greatest loss that could conceivably prove to have followed from the breach. It is imposed by way of punishment to prevent parties from committing the breach. तो यहां पे पेनल्टी के केस के अंदर क्या बोला गया है कि उसका कोई बैकअप कैलकुलेशन नहीं है. पेनल्टी का ऑब्जेक्टिव यह है कि सामने वाला ये डर के काम करे, उसको लगे कि अगर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने का कोई चांस ही नहीं है, आई विल हैव टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इफ आई डोंट फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट देयर विल बी एन हैवी पेनल्टी विच आई एम सपोज टू पे.
तो दिस क्लॉज इज जनरली इंक्लूडेड इन अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि गवर्नमेंट रोड बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स देता है तो उसमें ये पेनल्टी का क्लॉज होता है, ताकि वो पर्टिकुलर पर्सन ये अगर काम लेता है तो सोच समझ के ले कि उससे पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर वो पूरा नहीं होता है तो ही विल हैव टू पे अ ह्यूज पेनल्टी। उसमें ये भी हो सकता है कि उसको अपना घर बार बेचना पड़े, तो इसीलिए वो पर्टिकुलर पर्सन विद इन द टाइम अलॉटेड इज गोइंग टू कंप्लीट द वर्क। So that is an objective of including a penalty clause in any kind of a contract. Illustration. A agreed to build a house for B by 31st March 2008. A further agreed to pay rupees 5,000 per month as damages in case of delay beyond the agreed date. A was late by 2 months. B sued A for rupees 23,500. The actual loss caused to him as a result of escalation in prices of building material during the period of delay. A is liable to pay rupees 10,000 only because when a sum is named in the contract as the amount to be paid in the case of breach, the court will allow only reasonable compensation so as to cover the actual loss sustained within the time limit, within the limit stated in the contract. Now, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। A agreed to build a house for B by 31st March 2008. A ने B को यह वादा किया कि वो 31st March 2008 तक उसका घर बना के देगा। A further agreed to pay rupees 5,000 per month as damages in case of delay beyond the agreed date. A ने ये वादा किया कि अगर 31st March 2008 को ये काम पूरा नहीं होगा तो जितना डिले होगा उसका 5,000 रुपए पर मंथ वो देगा। A was late by 2 months. 31st March को पूरा नहीं हुआ. He was late by 2 months. That means he completed the house by 31st May 2008. So here he is liable to pay a damage for April and May. 5,000 multiplied by 2 months, 10,000 rupees. लेकिन हुआ क्या? B sued A for rupees 23,000. The actual loss caused to him as a result of escalation in price of building material during the period of delay. अब हुआ क्या कि 2 महीने डिले होने के वजह से मटेरियल के प्राइसेस अप्रैल और मई में बढ़ गए। तो मटेरियल का ऑब्वियसली पैसा किसको देना है? जो घर बना रहा। यहां पे घर कौन बना रहा है? बी। तो मटेरियल के प्राइस बढ़ने के वजह से बी का 23,500 का नुकसान हो गया। तो बी ने ए के खिलाफ क्या केस फाइल किया कि प्राइसेस मटेरियल के बढ़ने के वजह से ही हैज लॉस्ट 23,500। तो कोर्ट ने यहां पे जजमेंट क्या दिया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त प्री फिक्स डैमेजेस लिखे गए थे कि अगर डिले होता है तो 5,000 पर मंथ का लॉस आप रिकवर करोगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा नहीं लिखा था कि अगर डिले की वजह से मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो वो लॉस भी आप कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर से रिकवर करोगे। तो आपने ये क्लॉज उसमें इंक्लूड किया नहीं था, तो ये क्लॉज के लॉस आप रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, डिले का क्लॉज आपने इंक्लूड किया था तो उतना लॉस बी कैन रिकवर फ्रॉम ए, और कोर्ट ने जजमेंट दिया कि बी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर अ लॉस ऑफ only 10,000 and not 23,500. So this was a case. Now how to calculate a damages? These I have already covered. Just you go through the notes. मैंने आपको बताया कि damages, general damages will be equal to difference between the market price and the कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट में जितना लिखा गया और मार्केट में उस दिन जब आपने प्रॉमिस को ब्रेक किया उस दिन मार्केट में जो रेट है और जो भी डिफॉल्टिंग पार्टी है वो डिफरेंस कैलकुलेट करेगा और जनरल डैमेजेस वो देगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। और बाकी सभी केसेस के अंदर इट विल बी, जैसे कि स्पेशल डैमेजेस में
स्पेशल डैमेजेस में यू वांट टू से टू द अदर पार्टी दैट के ऐसे ऐसे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है और अगर नुकसान होता है तो इतना नुकसान आपको बेयर करना पड़ेगा। देन देयर इज अ विंडिक्टिव एंड एग्जाम्पलरी डैमेजेस, जैसा जहां पे मैंने बताया कि वहां पे एज सच देयर इज नो वैल्यू डिसाइडेड बिफोर हैंड, इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ कि आपका रेपुटेशन का नुकसान कितना हुआ है, आपके फीलिंग्स कितने हर्ट हुए हैं, उसके हिसाब से कोर्ट वो डैमेजेस का वैल्यू डिसाइड करेगा। देन देयर इज अ नॉमिनल डैमेजेस, मैंने आपको बताया कि नॉमिनल डैमेजेस एज सच वैल्यू वाइज कुछ मटेरियल नहीं रहेगा, लेकिन वहां पे सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव एग्रीव पार्टी का ये है कि बैंक कोर्ट में ये नोटिस हो जाए कि डिफॉल्टिंग पार्टी ने ये गलत काम किया है, ये प्रॉमिस ब्रेक की है। उसके बाद डैमेजेस फॉर डिटोरियोरेशन एंड डिले अपन ने देखा उसमें कि डिले की वजह से जनरली दिस काइंड ऑफ डैमेजेस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर एंड अगेन इट विल बी कैलकुलेटेड डिपेंडिंग अपॉन कि डिले की वजह से मॉनेटरी नुकसान एग्रीव पार्टी का कितना हुआ एंड दैट लॉस विल बी रिकवर्ड। और प्रीफिक्स डैमेजेस में लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी वी हैव कवर्ड। लिक्विडेटेड डैमेजेस आर जनरली अ backup calculation, already pre-estimation of loss and that will be mentioned in the contract, whereas in the case of a penalty it will be an exorbitant amount. The objective of levying a penalty or including a clause of penalty in any kind of a contract is to just force the other party that he should not after making a promise in the contract he should not create a breach. So penalty is a frightening clause. इट विल फ्राइटन द अदर पार्टी के आप प्रॉमिस ब्रेक नहीं कर सकते हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, आपको पूरा करना पड़ेगा। फाइन। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्टडी इज ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस। ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस और ड्यूटी टू मिटिगेट डैमेज सफर्ड। इसका मीनिंग ये है कि दो एग्रीव पार्टी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द डैमेजेस फ्रॉम द अदर पार्टी इन केस ऑफ default created by the injured party or promise broken by the other party। तो अगर सपोज आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया है, तो आपको ये पता है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करता हूं तो यू आर एंटाइटल्ड टू रिकवर द डैमेजेस। लेकिन यहाँ पे क्लॉज है कि यू विल ट्राई योर बेस्ट टू मिटिगेट दैट डैमेजेस, यानी उस लॉस को कम करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि लॉस हो रहा है और ये लॉस जो है वो आप मेरे से रिकवर करने वाले हो क्योंकि मैं डिफॉल्टिंग पार्टी हूं, मैंने प्रॉमिस ब्रेक किया है, आपको ये मालूम है कि वो लॉस आप मेरे से रिकवर करोगे, लेकिन फिर भी आपको ये ट्राई करना है कि आप उस लॉस को कम करने की कोशिश करोगे। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि सपोज आप एक दुकानदार हो, आपके शॉप से मैंने कोई फॉर एग्जांपल आई हैव परचेज अ रेफ्रिजरेटर फ्रॉम यू एंड आई टोल्ड यू दैट कि ये रेफ्रिजरेटर जो है यू आई आस्क्ड यू कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रेफ्रिजरेटर, यू सेड दैट कि इट इज ऑफ 20,000। तो मैंने आपको बोला कि ये 10,000 रुपए आप एडवांस लो और बाकी का 10,000 रुपीज मैं आफ्टर अ वीक जब मेरा गाड़ी आएगा जलगांव तो मैं आपसे ये रेफ्रिजरेटर का डिलीवरी ले लूंगा और बैलेंस अमाउंट आपको दे दूंगा। आपने बोला ठीक है, आपने मेरे नाम से बिल बना दिया, आपने वो गुड्स मुझे सेल कर दिया। द ओनली थिंग इज कि आई हैव नॉट टेकन द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। नाउ द थिंग इज यू हैव माय 10,000 रुपीज, रेफ्रिजरेटर का पोजीशन भी आपके पास है, तो आपका ड्यूटी क्या बनता है कि दो आई हैव नॉट टेकन द पोजीशन ऑफ द गुड्स बट स्टिल यू आर गोइंग टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर विच यू हैव ऑलरेडी सोल्ड टू मी, जो आपने मुझे ऑलरेडी सेल कर दिया है। आपको मालूम है कि आपके दुकान में वो माल गुड्स है, रेफ्रिजरेटर है, लेकिन दैट गुड्स बिलोंग्स टू मी, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स, you will not become negligent। तो सेम प्रिंसिपल यहां पे एप्लीकेबल है कि अगर एग्रीव पार्टी को ये मालूम है कि उसको डैमेजेस मिलने वाले तो वो एक लेजी पर्सन नहीं बन जाएगा, वो बिंदास नहीं हो जाएगा कि अपने को तो लॉस मिलने वाला है, नुकसान हो रहा है, होने दो।
वो पूरी नुकसान की भरपाई वी आर गोइंग टू रिकवर फ्रॉम द डिफॉल्टिंग पार्टी, वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर नुकसान नेग्लिजेंस के वजह से होता है, उसी के नेग्लिजेंस के वजह से एग्रीड पार्टी के, तो वो नुकसान की भरपाई इंजर्ड what it has been covered. It is the duty of the injured party to mitigate damage suffered. Mitigate यानी will try to reduce the damages. Mitigate damage suffered as a result of the breach of the contract by the other party. He must use all reasonable means of mitigating, that is reducing the damage, just as an ordinary man would under a similar circumstances in his own case. जैसा यहाँ पे मैंने रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल दिया कि सपोज मैंने आपसे रेफ्रिजरेटर लिया है और मैंने फॉर एग्जांपल पूरे ही पैसे आपको दे दिए, पूरे 20,000 रुपए दे दिए, तो वो दुकान में रेफ्रिजरेटर आपके पास मेरा है, उसका ओनर मैं हूं, लेकिन पोजीशन आपके पास है, तो क्या आप उस चीज का केयर नहीं लोगे? तो यहाँ पे लॉ बोलता है कि आपको उस चीज की उसी तरीके से केयर लेनी पड़ेगी जैसे जो गुड्स आपके गुड्स की जिस तरीके से केयर लेते थे, उसी तरीके से आपको मेरे गुड्स की केयर लेना है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि आप क्या चाहोगे कि आपका नुकसान ना हो, तो उसी तरह आपने मेरे नुकसान के बारे में भी सोचना चाहिए। Though you are entitled to recover the damages from the defaulting party, but you should try to reduce those particular damages. He cannot recover any part of damages traceable to his own neglect to mitigate. यानी अगर कोई लॉस आपके नेग्लिजेंस के वजह से हो रहा है तो उसकी नुकसान की भरपाई मैं करके नहीं दूंगा। We'll try to understand this concept with the help of this example. ये एग्जाम्पल आपके पूरे डाउट्स को क्लियर कर देगा as regards to mitigation of damages. Where a servant is dismissed, even though wrongfully, it is his duty, that is servant's duty, to mitigate the damages by seeking the other employment. He can recover only nominal damages if he refuses a reasonable offer of fresh employment. But if he cannot prove that he has failed in his duty of mitigation, he will be entitled to a full salary for the whole of unexpired period of service. If the contract of employment was for a fixed period, if the contract of employment was not for a fixed term, then the principle of awarding damages for a reasonable period of notice comes into play. Simple meaning. Suppose मैंने मेरे कंपनी में हायर किया और I have given you a fixed employment of for example 6 months. मैंने आपको बोला कि 6 महीने आप मेरा जॉब छोड़ नहीं सकते, ना मैं आपको निकाल सकता हूँ 6 मंथ तक, ना आप जॉब छोड़ सकते हो ना मैं आपको निकाल सकता हूँ। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हुआ है कि अगर आप 6 महीने के पहले अगर ये पर्टिकुलर जॉब छोड़ देते हो तो फिर you will be liable to give me a damages, या फिर अगर मैं आपको 6 महीने पहले निकाल देता हूं तो I will be liable to give you the damages. This is a contract. Now suppose after completing 4 months मुझे आपका काम पसंद नहीं आया और whatever is the reason मैंने आपको आपके जॉब से निकाल दिया, मैंने अपने कंपनी में से आपको फायर कर दिया. Now as per the contract I will have to give you a damages for 2 months because मैंने 6 महीने का प्रॉमिस किया था, 4 महीने में निकाल दिया 2 महीने. लेकिन अब यहाँ पे कोर्ट क्या बोलता है कि अगर आपको कोई दूसरी जगह जॉब मिल रहा है लेकिन ओनली ये सोच के कि आपको मेरे से डैमेजेस मिलने वाले इसीलिए आप वो जॉब ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो दिस इज नॉट करेक्ट. इन दैट सर्कमस्टेंसेस यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द डैमेजेस फ्रॉम मी. तो यहाँ पे आपको जॉब मिल रहा है, मैंने आपको 4 महीने में निकाल दिया और इमीडिएटली आपको दूसरा जॉब मिल रहा है, तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस यू हैव नॉट जॉइन दैट पर्टिकुलर जॉब ओनली विथ एन इंटेंशन दैट कि आपको मेरे से डैमेजेस रिकवर करने हैं. तो कोर्ट बोलता है ऐसा नहीं चलेगा, यू शुड ट्राई टू मिटिगेट द लॉस. व्हाट इट फर्दर सेज, A took a shop on rent from B and paid 1 month rent in advance.
B could not give the possession of the shop to A. A chose to do no business for 8 months, though there were other shops available in the vicinity. Vicinity यानी आसपास. A sued B for the breach of contract and claimed damages for the loss suffered, held he was entitled only to the refund of his advance and nothing more, as he had failed in his duty to minimize the loss by not taking another shop in the neighborhood. Very good example. हुआ क्या, मैंने आपसे एक दुकान ली और आपको उस दुकान का मैंने एडवांस दिया. फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू ₹1 लाख एज एन एडवांस, लेकिन कुछ कारणवश आप वो शॉप मुझे नहीं दे पाए. अब मैं यहाँ पे क्या हो गया, आई गॉट रिलैक्स कि ठीक है डिले करने दो, ये शॉप मुझे नहीं दे रहा है, मत देने दो, मैं इससे डैमेजेस वसूल करूंगा. नाउ द थिंग इज, उसी एरिया में एक बाजू की दुकान अवेलेबल है जो आपको मिल रही है बराबर, लेकिन यू आर नॉट टेकिंग दैट पर्टिकुलर शॉप क्योंकि आपको मेरे से डैमेजेस वसूल करना है. तो यू गॉट रिलैक्स एंड आपने 8 मंथ्स जो आपके लिए वो शॉप अवेलेबल थी, आपने वो शॉप को नहीं दिया, ये सोच के कि आप 8 मंथ्स का बिजनेस का आपका जो अपॉर्चुनिटी का लॉस हो रहा है वो सब लॉस मेरे से रिकवर करेंगे. तो कोर्ट हैज नॉट गिवन अ जजमेंट इन योर फेवर. कोर्ट ने क्या बोला कि ठीक है उसने आपको शॉप नहीं दिया, क्या आपको उस एरिया में दूसरी शॉप अवेलेबल थी? आंसर इज यस. लेकिन फिर भी आपने वो शॉप क्यों नहीं ली? क्यों नहीं ली? क्योंकि आपको मेरे से लॉस रिकवर करना था, डैमेजेस. तो कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं चलेगा. यहां पे आप सामने वाले का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो ऐसा नहीं सोच सकते. आपको दूसरी शॉप अवेलेबल थी, आपने वो लेना चाहिए था. कोर्ट ने क्या बोला कि मुझे जो आपसे एडवांस लिया, ऑब्वियसली आई विल हैव टू रिटर्न दैट. कोर्ट मुझे क्या बोलता है कि मैंने सिर्फ जितना वो एडवांस रिटर्न करने में डिले किया, इफ सपोज आई हैव इमीडिएटली गिवन यू द एडवांस, देन देयर इज नो प्रॉब्लम एज रिगार्ड्स टू इंटरेस्ट. लेकिन अगर मैंने डिले किया है तो आई विल ओनली बी लायबल टू गिव यू द इंटरेस्ट. लेकिन आप बोलते हो कि 8 महीने आपने मेरे वजह से बिजनेस नहीं किया और वो बिजनेस में आप जो नफा कमाने वाले थे वो आप नहीं कमा पाए, तो वो पूरा का पूरा नफा आपको मेरे से वसूल करना है. तो कोर्ट मेरे फेवर में जजमेंट देगा, ना कि आपके फेवर में. तो यहाँ पे क्या बोलता है कि इवन दो अगर एग्रीव पार्टी को ये लॉस रिकवर होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस, बट ही शुड ट्राई टू पुट हिज लेग इन द बूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर अदर पार्टी यानी इंजर्ड पार्टी, एंड ही शुड ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस. कॉस्ट ऑफ सूट के लिए बोला है कि अगर एग्रीव पार्टी कोर्ट में जाता है और जो भी वो सूट फाइल करने का लॉयर का जितना भी खर्चा होगा, दैट पर्टिकुलर एक्सपेंसेस कैन आल्सो बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंजर्ड पार्टी. व्हाट इट सेज, कॉस्ट ऑफ सूट, द एग्रीव पार्टी इज एंटाइटल्ड इन एडिशन टू डैमेजेस टू गेट द कॉस्ट ऑफ गेटिंग द डिक्री for the damages from the defaulter party. The cost of suit for damages is in the discretion of the court. यानी यहाँ पे apart from recovering the damages, the injured party or you can call it as an aggrieved party can recover damages recover the cost of filing the suit from the defaulting party. तो डिफॉल्टिंग पार्टी से वो डैमेजेस के अलावा जितना उसका लीगल एक्सपेंसेस हुआ है, एडवोकेट को हायर करने का, केस फाइल करने का, तो वो सब खर्चा वो डिफॉल्टिंग पार्टी से रिकवर कर सकता है. लेकिन कोर्ट का डिस्क्रिप्शन देगा, कोर्ट देखेगा कि एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट वो ना हो, जितना एक्चुअल खर्चा हुआ है दैट एक्सपेंसेस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द डिफॉल्टिंग पार्टी. तो दिस वाज ऑल अबाउट डैमेजेस. तो we have covered 2 topics over here. First is suit for rescission, that is the cancellation of the contract, and suit for damages. And the damages, what we have covered, damages, types of damages. First is an ordinary damages, general damages. Second one is a special damages. Third one is a vindictive or exemplary damages. Fourth one is a nominal damages. Fifth one is damages for deterioration caused by delay. Fine. और इसके अलावा what we have seen, prefix damages, 2 types, liquidated damages and a penalty.
और उसके अलावा वी हैव सीन दैट कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ द एग्रीव पार्टी टू मिटिगेट द लॉस, लॉस को मिटिगेट करना, मिनिमाइज करना उसका काम है। ये वो बिंदास नहीं हो सकता है कि अपने को पूरा का पूरा लॉस डिफॉल्टिंग पार्टी से मिलने वाला है तो ही इज गोइंग टू गेट रिलैक्स और उस पर वो ध्यान नहीं देगा, ऐसा नहीं कर सकता है। उसको लॉस कम करने का या डैमेजेस कम करने का पूरा ट्राई करना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ डैमेजेस। Still there are something remaining, and that is these three things are remaining under this particular unit is suit for specific performance, suit for injunction, and suit upon quantum merit. This we are going to cover in the next lecture. I hope you have enjoyed the lecture. Still, if you have any doubt, you can call me. Bye everyone.